Hi students, good morning. Today we are going to start Golden Rays book. This is the main course. We can see first book of 10th standard. So we are going to start the first chapter of this chapter. There are 11 chapters in this book. First chapter, the book that saved the earth. Second, on violence. Positive health, the tale of the Vishnu is a hero. What is amiss with us? The lady or the tiger, discourse on prayer, a man's tuition, the tribute, the betrayal of faith. In this chapter or from this chapter, a question is asked according to blueprint. Question number 22 is asked from the book that saved the earth. This is a drama, and in the blueprint of RBSC, a question of 3 marks is to be asked from this section. So you must prepare this chapter very well, because a definite question is always asked from this chapter according to the blueprint. And there are 4 poems which have been discussed by us in the previous volumes. So this is the first chapter, and in the starting, a character sketch or characters have been given to us. The name of this chapter is The Book That Saved the Earth. वह बुक जिसने धरती को बचाया. Maybe this title seems awkward to you because the existence of Earth cannot be destroyed without a book or with a book. It is a natural phenomenon in which a book cannot play a part or role. But this is a fantasy or imaginary story. This is not a real story. So this is the only imagination of the writer, and he wants to provide some facts related to the reading, learning and writing. And he also gives a funny account of this. Overall, we can say this is a story based on imagination of the writer. Characters. Historian. First character is historian. He gives detailed story of the previous things which had taken place in the course of time. Great and mighty think tank. This is the person who wants to invade the earth. ये वो व्यक्ति होता है जो कि धरती पे आक्रमण करना चाहता है. हिस्टोरियन उन सभी लोगों को उस इंसिडेंट के बारे में बताता है जो कि हो चुके हैं या होने वाले थे. धरती पर आक्रमण होने वाला था मार्सियन के द्वारा, बट वो नहीं होता है. और ग्रेट एंड थिंक माइटी थिंक टैंक, ये वो पर्सन है जो धरती पर आक्रमण करने के बारे में सोचता है. खुद ये मार्स से था, मंगल ग्रह, वहाँ का ये रूलर था. सो ग्रेट एंड थिंक टैंक, माइटी थिंक टैंक इज द रूलर ऑफ मार्स and he wants to invade the earth. Next one is Apprentice Noodle and Captain Omega, Lieutenant Iota, Sergeant Oob. Apprentice Noodle gives detailed things or detailed information related to the earth and other things to great and mighty think tank. You can say Apprentice Noodle is the assistant of great and mighty think tank.
So the first character is historian, and historian gives detailed information of the attack and also tells the importance of books. Great and mighty think tank is the ruler of Mars and he wants to invade the earth. Apprentice Noodle is the assistant of great and mighty think tank. Captain Omega leads the mission to attack the earth. Lieutenant Iota and Sergeant Troop are the assistant of Captain Omega on the mission for the earth. And off stage wise, there's audience, so the audience also makes some noise when the incidents take place. So these are the characters. Scene first. Read and find out why was the 20th century called the era of the book. 20th century को बुक की सदी, किताबों की सदी क्यों कहा गया? Who tried to invade the earth in the 21st century? और 21st century में किसने धरती पर आक्रमण करने की कोशिश की? तो ये दो क्वेश्चन हैं जिनको हम इस फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि जो 21st सेंचुरी है उसको किताबों की सदी क्यों कहा गया और 21st सेंचुरी में धरती पर आक्रमण किसने किया. टाइम द 25th सेंचुरी, और जो टाइम है वो लगभग आज से 400 साल बाद गए जब 25th सेंचुरी में ये इंसिडेंट को शो किया गया है. उस समय तक जिस तरीके से वर्चुअल क्लासरूम्स बढ़ रहे हैं तो इस तरीके से इमेजिन किया है कि ये रियलिस्टिक भी लगता है हमें थोड़ा सा. उस समय तक जो बुक्स है वो उनका एग्जिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा या बुक्स पे लोग बहुत कम डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो वहाँ तक जाते जाते जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं होगा शायद कि बुक्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि सारी की सारी जो स्टडी मटेरियल होगा उनके लिए वो कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे उनके लिए अवेलेबल होगा. तो सारे पीडीएफ्स पढ़ रहे होंगे, वर्चुअल क्लासरूम्स होंगे जहाँ पे कंप्यूटर पे वो चीज़ें सीख रहे होंगे. शायद टीचर्स का एग्जिस्टेंस भी उस समय तक न रहे. इस तरीके की भी इमेजिनेशंस कई बार हमें सुनने को मिलती है या देखने को हमें मिलती है. तो हमें ध्यान क्या रखना है, जो टाइम है जिस समय ये मूवी जिस टाइम पे ये चैप्टर सेट किया गया है वो 25th सेंचुरी है. अभी हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, तो आज से लगभग 400 साल बाद की ये इंसिडेंट है. और जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया ये इमेजिनेशन पे बेस्ड स्टोरी है. तो यहाँ पे केवल और केवल कल्पनाओं के बारे में ही बात करते हैं. प्लेस, जगह कौन सी? द म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का एक म्यूजियम है. डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन दी प्लेनेट अर्थ. तो ये म्यूजियम काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है और उसी म्यूजियम में एक डिपार्टमेंट बना हुआ है. म्यूजियम एक बड़ी बिल्डिंग होगी और उसी का एक हिस्सा है जिसमें 20 सेंचुरी जो धरती जो प्लेनेट है, जो अर्थ प्लेनेट है, उसकी 20 सेंचुरी का एक डिपार्टमेंट बना हुआ. तो यहाँ पे उन चीज़ों को रखा गया है जो कि 20th सेंचुरी में एग्जिस्ट करती थी. ठीक है, उन पे रिसर्च होता है यहाँ पे या उनको देखने के लिए रखा जाता है. बिफोर राइज, राइज का मीनिंग पर्दा उठना. पर्दा उठने से पहले जिस तरीके से हम ड्रामा देखते हैं, जैसे रामलीला या कोई दूसरा कोई स्टेज प्रोग्राम देखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं और जैसे ऑडियंस आ जाती है और उसका टाइम शुरू हो जाता है उस ड्रामा का शुरू होने का, उस समय जो पर्दा होता है वो रोल होते होते ऊपर की तरफ उठ जाता है. ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे तो पर्दा उठने से पहले वहाँ पे क्या होता है उसके बारे में बता रखा है. स्पॉटलाइट साइंस ऑन हिस्टोरियन, जो स्पॉटलाइट होती है वो हिस्टोरियन पे
साइन कर रही है, मतलब स्पॉटलाइट की वजह से जो हिस्टोरियन है उसको देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो ड्रामा है या तो वो किसी बिल्डिंग के अंदर है, वहाँ पे चल रहा है, या फिर वो नाइट के समय पे चल रहा है, क्योंकि जो हिस्टोरियन है उस पर जब लाइट गिरती है तब वह हिस्टोरियन दिखाई देता है। स्पॉटलाइट वो होती है जो किसी एक पर्सन पे फोकस की जाती है और जो अदर जो कैरेक्टर्स जो बैठे रहते हैं वो दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है। हु इज सिटिंग एट ए टेबल डाउन राइट, जो कि नीचे की तरफ एक टेबल पर बैठा हुआ है। ऑन विच इज ए मूवी प्रोजेक्टर, और जिसके ऊपर एक मूवी प्रोजेक्टर है। मूवी प्रोजेक्टर जिसकी जो लाइट है वो पर्दे पर जाती है और वहाँ पे ड्रामा शुरू हो जाता है। ए साइन ऑन एन ईजल बिसाइड हर रीड्स, और एक उसके पास में जो ईजल है, जो पेंटिंग स्टैंड है, उस पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है। ईजल का मीनिंग हो गया है स्टैंड। जनरली जो पेंटिंग्स रखी जाती है या जो होर्डिंग्स रखे जाते हैं और उसके लिए जो स्टैंड होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं ईजल। म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, और उस साइन बोर्ड पे लिखा हुआ है उस पर म्यूजियम ऑफ एंसेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी। सी स्टैंड्स एंड बोज टू ऑडियंस, वह खड़ी होती है और ऑडियंस के सामने झुकती है। सो हियर वी कैन कम टू नो द जेंडर ऑफ द हिस्टोरियन। हिस्टोरियन इज अ गर्ल और लेडी। ओके, so whenever the question is asked related to the historian, you have to use she pronoun. Remember this, students. In the character sketch you can say the historian is a female character. Historian, good afternoon. जब हम देख रहे थे स्पॉटलाइट जो गिरती है तो उस समय हमें पता नहीं था कि वो नाइट है या डे है, परंतु हम केवल और केवल अनुमान लगा रहे थे। स्पॉटलाइट या तो किसी बंद कमरे में यूज़ की जाती है या फिर वो नाइट का समय होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि जो म्यूज़ियम है वो एक बिल्कुल बंद एक आर्ट गैलरी की तरह है, और यहाँ पे जो 20th सेंचुरी का जो डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल क्लोज्ड है और टाइम जो है वो आफ्टरनून का है। तो जो टाइम है वो 25th सेंचुरी है। प्लेस हो गया है एंसेंट, जो म्यूजियम है वो, और डिपार्टमेंट ऑफ 20 सेंचुरी। हिस्टोरियन बोल रही है, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू आवर म्यूजियम, हमारे म्यूजियम में आपका स्वागत है। ऑफ एंसेंट हिस्ट्री, प्राचीन जो हिस्ट्री है, इतिहास है, उसके म्यूजियम में आपका स्वागत है। एंड टू माय डिपार्टमेंट, और मेरी डिपार्टमेंट में। तो हिस्टोरियन जो है वो इस डिपार्टमेंट की क्या है, इंचार्ज है। कौन से डिपार्टमेंट की, 20th सेंचुरी के डिपार्टमेंट की। क्यूरियसिटीज ऑफ द गुड ओल्ड हार ऑफ 20th सेंचुरी। क्यूरियसिटीज मीन्स स्ट्रेंज थिंग्स, अजीब चीज़ें। क्यूरियसिटी इज यूज्ड फॉर द थिंग्स विच मेक्स अस फील इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड। कोई ऐसी चीज़ें जिसमें हम रुचि लेते हैं, क्यूरियस हो जाते हैं, उत्सुकता की जो चीज़ें होती हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। क्यूरियसिटीज उत्सुकता की चीज़ें, या फिर स्ट्रेंज थिंग्स अजीब चीज़ें। प्राचीन, अच्छे प्राचीन या बहुत अच्छी पुरानी, और 20th सेंचुरी की जो स्ट्रेंज थिंग्स हैं उनके डिपार्टमेंट में आपका स्वागत है। द 20th सेंचुरी वॉज ऑफन कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक। 20th सेंचुरी को कई बार बुक्स की एरा कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, उसका रीज़न है
इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग। उन दिनों लगभग हर एक चीज़ के बारे में बुक्स थी। फ्रॉम एडिटर्स टू जुलूस, एडिटर से लेकर जुलूस तक, एडिटर से लेकर जुलूस तक। यहाँ पे जो जुलूस वर्ड यूज़ किया गया है वो एक ट्राइब के लिए यूज़ किया गया है, एक खानाबदोश ग्रुप के लिए यूज़ किया गया है। और एडिटर्स का मीनिंग होता है चिंटीखोर, ऐसे जानवर जो चिंटियों को खाते हैं। तो एंट चिंटी होती है और ईटर मीन्स खाने वाला, तो एंट ईटर मीन्स क्या हो गया, चिंटीखोर से लेकर जुलूस अफ्रीकी जो इलाके हैं उनके लिए यूज किया गया है। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू एंड व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। जो बुक्स होती थी वो लोगों को सिखाती थी, क्या सिखाती थी कि कोई काम कैसे किया जाता है, हाउ टू डू समथिंग, एंड व्हेन टू डू समथिंग, कोई कैसे किया जाता है या कैसे किया जाता था या कैसे किया जाएगा, एंड वेयर टू, कैसे कौन सी जगह होगी वो सूटेबल प्लेस होगा, और उसका लॉजिक क्या होगा, रीज़न क्या होगा। तो बुक्स लोगों को ये सिखाती थी कि कोई काम कैसे करते हैं, कब करते हैं, कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें हैं, इन सारे लॉजिक्स का, इन सारे प्लेसेस का, टाइम का और मेथड या मैनर के बारे में बुक्स बताती थी। दे इलिस्ट्रेटेड, वे उदाहरण देकर समझाती थी। एजुकेटेड, वो एजुकेट करती थी, लोगों को शिक्षित करती थी। पंक्चुएट करती थी, पंक्चुएट मीन्स का मीनिंग हो गया है किसी को मैनर्स सिखाना, टू मेक समवन मैनर्ड, किसी को मैनर्ड बनाना। वैसे पंक्चुअल जो यूज़ किया जाता है वो टाइमली कोई एक्शन करने वाले व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है। एंड इवन डेकोरेटेड, और यहाँ तक कि वो सजाने का काम भी क्या करती थी। तो बुक्स जो होती थी उदाहरण देकर समझाती थी, लोगों को एजुकेट करती थी, उनको पंक्चुएट बनाती थी और यहाँ तक कि उनको डेकोरेट भी करती थी। तो डेकोरेट करने का मीनिंग ऐसे नहीं है कि उनके फूल पत्ते लगा दिए गए हैं, इसका मीनिंग जो है वो ये है कि किसी भी वाक को वो ब्यूटीफुली कैसे कर सकते थे, खूबसूरत तरीके से कैसे करते थे। बट द स्ट्रेंजेस्ट थिंग अ बुक एवर डिड वॉज टू सेव द अर्थ, परंतु सबसे अजीब बात जो धरती ने कभी की थी वो थी, सॉरी उस बुक ने की थी वो थी धरती को बचाने का जो कार्य था। तो सबसे अजीब कौन सी चीज़ थी या बात थी जो एक बुक ने की थी, वो थी धरती को बचाने की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखेंगे हम जो बुक थी उसको जो एरा थी 21st सेंचुरी, उसको हमने बुक्स की एरा क्यों कहा है, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न यहाँ पे दे रखा है। इन दोज डेज देयर वर बुक्स अबाउट एवरीथिंग फ्रॉम एंटिटर्स टू जुलूस। बुक्स टॉट पीपल हाउ टू, when to and where to and why to. they illustrated, educated, punctuated and even decorated। तो ये इसका रीज़न हो जाएगा कि बुक्स को, सॉरी 21st सेंचुरी को बुक्स की एरा क्यों कहा जाता था। इसको ध्यान से पढ़े आप। यू हैवेंट हर्ड, आपने नहीं सुना किसके बारे में, अबाउट द मार्शियन इन्वेजन ऑफ 2014। क्या आपने मार्शियन आक्रमण जो 2040 में हुआ था उसके बारे में नहीं सुना। अभी हमने स्टार्टिंग में बात की थी, अभी 2040 आया नहीं है, परंतु ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की गई है, तो इसलिए ये जो डेट है वो बाद की रखी गई है। व्हाट डू दे टीच चिल्ड्रन नाउ डेज, आजकल वो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वो निराश है, शायद उसको इस बात से नाराज़गी है कि लोग बच्चों को हिस्ट्री के बारे में नहीं पता है, क्योंकि हिस्टोरियन है और ऐसे लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इन सब चीज़ों के बारे में उनको पता हो, सभी को पता हो। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा, क्या आपने 2040 के मार्शियन इन्वेजन के बारे में नहीं सुना। इन्वेजन मीन्स होता है अटैक, आक्रमण। वेल यू नो, ठीक है तुम जानते हो, द इन्वेजन नेवर रियली हैपन, जो इन्वेजन था वो वास्तव में कभी हुआ ही नहीं, जो आक्रमण था वो कभी हुआ ही नहीं। इन्वेजन मीन्स क्या होगा, अटैक। बिकॉज सिंगल बुक स्टॉप्ड इट, क्योंकि एकमात्र बुक ने इसको बचा लिया था। व्हाट वाज द बुक यू आस्क, तुम पूछ सकते हो कि वो बुक क्या थी। नोबल एनसाइक्लोपीडिया, क्या एक श्रेष्ठ विश्वकोश था वो। एनसाइक्लोपीडिया मीन्स विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया विश्वकोश।
ए टोम अबाउट रॉकेट्स एंड मिसाइल्स। मिसाइल्स और रॉकेट्स के बारे में क्या वो एक टोम थी? टोम मीन्स होता है अ बिग बुक, एक बड़ा ग्रंथ। ए सीक्रेट फाइल फ्रॉम आउटर स्पेस, क्या बाहरी दुनिया से या अंतरिक्ष से एक सीक्रेट फाइल थी? नो, इट वॉज नन ऑफ दोज, नहीं इनमें से ये कुछ भी नहीं थी। इट वॉज, ये थी, इट वॉज, ये थी। बट हियर लेट मी टर्न टू द हिस्टोरिस्कोप एंड शो यू what happened many centuries ago। तो यहाँ पे वो कुछ कहना चाहती है परंतु उसके बाद वो रुक जाती है। उससे पहले वो शो करना चाहती है कि कई शताब्दियों पहले क्या हुआ था। बट हियर, परंतु पहले, लेट मी टर्न ऑन द हिस्टोरिस्कोप, मुझे हिस्टोरिस्कोप को ऑन करने दो। टर्न ऑन मीन्स होता है चालू करना। हिस्टोरिस्कोप का मीनिंग होता है जो इतिहास की बातों को दिखाने वाला यंत्र है, उसके लिए यूज़ किया गया है। तो एन इक्विपमेंट विच कैन शो द स्लाइड्स ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की स्लाइड्स को शो कर सकता है उसके लिए यूज़ किया गया है। तो इतिहास दिखाने वाला यंत्र, तो जो प्राचीन घटनाएं हैं उनके बारे में चीज़ों को बताने वाला जो यंत्र है उसको हिस्ट्रीस्कोप कहा गया है। एंड हाउ शो यू व्हाट हैपेंड मैनी ईयर्स अगो, और मुझे दिखाने दो कि कई शताब्दियों पहले क्या हुआ था इन 2040। सी टर्न्स ऑन प्रोजेक्टर, वह प्रोजेक्टर को ऑन करती है। एंड पॉइंट्स इट लेफ्ट, और इसको लेफ्ट साइड में करती है। स्पॉट लाइट ऑन हिस्टोरियन गोज आउट, जो हिस्टोरियन पे जो स्पॉट लाइट होती है वो बाहर की तरफ चली जाती है। एंड कम्स अप डाउन लेफ्ट ऑन थिंक टैंक, और बाहर की तरफ जो थिंक टैंक है उसके लेफ्ट साइड में आ जाती है। जो थिंक टैंक है लेफ्ट साइड में उस पर वो आ जाती है। हु सिटेड ऑन ए रेस्ड बॉक्स, जो कि एक उठे हुए बॉक्स पे बैठा हुआ था। आर्म्स फोल्डेड, अपने आर्म्स को फोल्ड करके, तो अपने भुजाओं को उसने फोल्ड कर रखा था और वह एक उठे हुए बॉक्स पर बैठा हुआ था लेफ्ट साइड में। ही हैज़ ए ह्यूज एक्सेप्ट हेनरी, उसका एक की तरह शेप वाला सिर था। हेनरी मीन्स हेड, हेनरी मीन्स हेड, तो उसका जो सिर था वो अंडाकार था, एक अंडे की तरह उसका सिर था और काफ़ी ह्यूज था, काफ़ी बड़ा था। एंड ही वियर्स ए लॉन्ग रॉब डेकोरेटेड विद स्टार्स एंड सर्कल्स, और वह एक लंबी पोशाक पहने हुए था। रॉब मीन्स क्या होता है? ड्रेस, कॉस्ट्यूम, और रेड कलर की एक कॉस्ट्यूम पहने हुए था जो कि स्टार्स और सर्कल से सजाई हुई थी। डेकोरेटिव मीन्स सजाना या सजी हुई, ठीक है। जो किस से सजी हुई थी? स्टार्स, तारों से, और सर्कल से। अप्रेंटिस नूडल स्टैंड्स बिसाइड हिम एट एन एलेबरेट स्विच बोर्ड, और अप्रेंटिस नूडल जो था उसके बगल में एक बड़े से स्विच बोर्ड के पास में खड़ा था। एलेबरेट मीन्स होता है यहाँ पे बिग, एलेबरेट मीन्स बिग, और समथिंग दैट हैज़ बीन मेड वेरी केयरफुली, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी सावधानी से बनाई गई है, तो बड़ी सावधानी से बनाई गई स्विच बोर्ड के पास में वो खड़ा था। ए साइन ऑन एन ईजल रीड्स, और एक जो ईजल था उस पर लिखा हुआ था। रीड का मीनिंग यहाँ पे पढ़ना ना होकर क्या होगा? लिखा हुआ होना। और वहाँ पे क्या लिखा था? मास स्पेस कंट्रोल, मास स्पेस कंट्रोल, ये उस डिपार्टमेंट का नाम हो गया है जिसका रूलर कौन था? थिंक टैंक, ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ। और यहाँ पे इसकी नेम प्लेट थी। ये जनरली होता है, ये पहले हम किसी की पोस्ट राइट करते हैं, सॉरी पहले किसी का नाम राइट करते हैं उसके बाद पोस्ट राइट करते हैं, या फिर किसी की पोस्ट पहले राइट कर देते हैं उसके बाद उसका नाम राइट कर देते हैं। तो इस तरह का ट्रेंड जनरली रहता है। तो उसकी पोस्ट तो क्या थी?
पोस्ट कमांडर इन चीफ, और उसका नाम क्या था? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक। और कहाँ पे स्पेस कौन सा था जहाँ पे वो कंट्रोल करता था? वो जगह थी मार्स स्पेस कंट्रोल, ये डिपार्टमेंट था। बोज लो बिफोर एंट्री, एंटर करने से पहले झुकता है कौन? नूडल। नूडल कौन है? अप्रेंटिस है, ठीक है, प्रशिक्षु है, प्रशिक्षण ले रहा है माइटी थिंक टैंक के पास में, बोइंग। और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, वो मीन्स होता है झुकना। अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, माइटी मीन्स होता है पावरफुल, शक्तिशाली। मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर इन द होल यूनिवर्स, सबसे शक्तिशाली और सबसे बुद्धिमान व्यक्ति इस यूनिवर्स के। व्हाट आर योर ऑर्डर्स, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या है? तो नूडल उनके जो प्लान होता है उनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है, एक तरीके से उसके पास में प्रशिक्षण ले रहा है, और इसलिए वो रेस्पेक्ट भी शो करता है किसके प्रति? ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक के प्रति। और ग्रेट और माइटी थिंक टैंक की पोस्ट क्या थी? कमांडर इन चीफ। वह कमांडर इन चीफ था, मतलब जितने भी ऑर्डर्स वहाँ पे पास होते थे या दिए जाते थे वो इसके द्वारा ही दिए जाते थे। एक तरीके से हम इसको रूलर मान सकते हैं, वहाँ का शासक मान सकते हैं। थिंक टैंक प्रीवियसली, प्रीवियसली मीन्स होता है इरिटेबली, गुस्सा दर्शाते हुए, या विद एंगर। वह खिंचकर बोलता है, यू लेफ्ट आउट पार्ट ऑफ माई सैल्यूटेशन, तुमने मेरे सैल्यूटेशन के एक हिस्से को छोड़ दिया है। पार्ट मीन्स हिस्सा, प्रीवियसली मीन्स विद एंगर, गुस्से से, विद एंगर और फ्रस्ट्रेशन, गुस्से से या फिर फ्रस्ट्रेशन से। अप्रेंटिस नूडल, प्रशिक्षु नूडल, तुमने मेरे सैल्यूटेशन के, अभिवादन के एक हिस्से को छोड़ दिया है। गो ओवर द होल थिंग अगेन, इस चीज़ को फिर से करो। गो ओवर द होल थिंग अगेन, किसी काम को फिर से करने के लिए उसको बोला गया, और काम कौन सा है वापस बोलने का? उसको वापस सैल्यूट करने का। तो इस तरीके से इतना भारी भरकम सैल्यूट कर देता है अप्रेंटिस नूडल, फिर भी वह उससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहता है कि उसके जो डीड्स हैं उनकी और अच्छे से एक्सप्लेनेशन की जाए या उनको और ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला जाए। तो यहाँ पे एक चीज़ हमने समझनी है, अगर उसका कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो वो ये है कि ही वॉन्ट्स पीपल टू अप्रिशिएट हिम, वह चाहता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। इट्स सेल्फ डन सर, ये कर दिया जाएगा श्रीमान, इन अ सिंग सॉन्ग, एक गीत की तरह है। ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक, रूलर ऑफ मास एंड हर टू मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, व्हाट आर योर ऑर्डर्स? आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ का मीनिंग होता है उसकी सांस भर जाती है। तो नूडल वापस ये कहता है, अरे महान और शक्तिशाली थिंक टैंक, मार्स और उसके दो जो चंद्रमा है उनके शासक, सबसे शक्तिशाली और इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट प्राणी, तुम्हारे ऑर्डर्स क्या हैं? तो इस तरीके से जो सैल्यूटेशन का जो प्रोसेस होता था वो इस तरीके से होता था कि जो थिंक टैंक था उसकी सारी क्वालिटीज़ के बारे में सबको पता चल जाए, और वो कौन कौन सी क्वालिटीज़ थी उसकी, कौन कौन से वो डीड्स थे जो उसने किए थे। वह शक्तिशाली और महान था, वह मार्स का और उसके दो मून्स का क्या था? मालिक था, शासक था, सबसे पावरफुल और इंटेलिजेंट क्रिएचर था पूरी दुनिया में, ऐसा उसके जो काम करने वाले थे वो मानते थे या उनको ऐसा मानना पड़ता था, क्योंकि थिंक टैंक हमेशा उनको अब्लाइज करता था इस तरीके से सैल्यूट करने के लिए। तो यहाँ तक देखा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस तरीके से थिंक टैंक अपने आप को सैल्यूट करवाना चाहता था या संबोधित करवाना चाहता था। तो आपको ये पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं वो राइट करनी है। ही वॉन्ट्स टू बी सैल्यूटेड लाइक,
और यहाँ से फिर आप कोमा और इन्वर्टेड कोमा राइट करके लिख दोगे, ओ ग्रेट एनीथिंग माइटी थिंक टैंक रूलर ऑफ मार्स एंड हर टू मून्स मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स। ठीक है, वॉट, बस यहाँ तक आपको फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा लगा देना, फुल स्टॉप लगा देना। तो इस तरीके से उसका सैल्यूटेशन का एक मैनर हो गया है जिसमें वो चाहता था कि लोग उसको सैल्यूट करें। So today we have discussed a little bit things or background of this story. In the next volume we will try to understand the things which have been discussed in the drama, and all these things will be discussed easily. So I hope that you will understand the hard word meaning of these things, and you will also try to understand the significance of this drama, because in the starting of this drama I have said you that the 22nd question is fairly fixed in the examination according to the blueprint and model papers of the official site of RBSC, and the question would be of 3 marks. So you have to watch all these things carefully, you have to learn all these things very carefully, and you must also write the character sketch of each character mentioned in this drama. Thanks for watching the video.